یہ وہ پیاری کتاب ہے کہ اس کو چھونا بھی عبادت، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو پڑھنا بھی عبادت اور اس کا سننا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ مگر آج اگر ہم اپنے حال پر غور کریں تو اس کتاب کو سیکھنے کے بارے میں ہمارا کیا عمل ہے، تو یقیناً ہم اس کتاب کو سیکھنے کے معاملے میں غفلت کا شکار نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اس کی تعلیم کی اہمیت کا کون انکار کر سکتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو سیکھا، دوسروں کو سکھایا اور جو کچھ اس قرآن مجید میں ہے اس پر عمل کیا تو بروز قیامت قرآن مجید اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، جہاں قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا جنت میں داخلے کا سبب ہے، وہیں قرآن مجید کو نہ سیکھ کر غلط طریقے پر پڑھنا عذاب اور وعید کا باعث ہے۔ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید غلط پڑھنے کے سبب ان پر لعنت فرماتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنا ایک اور نیا پروگرام آئیں قرآن سیکھیں لے کر حاضر ہیں۔ تو اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کو درست طرح سے پڑھنا بھی سیکھیں گے اور جو غلطیاں عموماً قرآن مجید کو پڑھنے میں ہم سے ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا جو یہ پروگرام ہے وہ 2 سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا۔ پہلا سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے تجوید، کوئی ایک آیت ہمارے پاس ہوگی جس کو ہم درست طرح سے پڑھنا سیکھیں گے۔ ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے ذکر نعمت۔ اس سیگمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے کسی ایک نعمت کا ہم ذکر کریں گے اور اس ایک نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا انعام رکھے ہیں ان کو بھی ہم اس سیگمنٹ کے اندر جانیں گے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بچے بھی ہوں گے، تو آئیے سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی ابو بکر۔ ابو بکر۔ جی سید حمدان علی۔ سید حمدان علی۔ جی محسن ایاز۔ محسن ایاز۔ جی عبداللہ۔ عبداللہ۔ جی سید زید رضا اتاری۔ سید زید رضا اتاری۔ جی عبد الباسط۔ سب بچوں کا تعارف بھی ہو گیا، تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تجوید۔ تو آج ہم اپنے اس سیگمنٹ کے اندر سورہ تکاثر کی پہلی آیت کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورہ تکاثر کی پہلی آیت۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ پڑھنا سکھاؤں گا، ٹھیک ہے بچوں؟ جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر۔ پیارے بچوں، اس آیت کے اندر آپ جو پہلا حرف دیکھ رہے ہیں حمزہ، حمزہ کے اوپر جو آپ شکل بنی ہوئی دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ اس حمزہ کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر۔ کیا کہتے ہیں؟ زیر۔ اور اس حمزہ کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش۔ کیا کہتے ہیں؟ پیش۔ زبر، زیر اور پیش، ان تینوں کو ہم حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ اب جس حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو تو اسے ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں۔ یعنی اس حمزہ کے اوپر زبر لگا ہوا ہے تو اسے ہم کھینچ کر آ نہیں پڑھیں گے، اسی طرح اسے ہم جھٹکا دے کر آ بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ اسے بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے آ پڑھیں گے۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی قاری صاحب، اسے تو ہم لوگ الف کہتے ہیں، آپ نے حمزہ کیوں پڑھا؟ حمزہ میں نے اسے کیوں پڑھا؟ بڑا ہی اچھا سوال ہے کہ اسے میں نے حمزہ کیوں کہا۔ پیارے بچوں، جب الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگی ہوتی تو اسے ہم الف کہتے ہیں، لیکن جب اس پر کوئی حرکت آ جائے یعنی زبر، زیر یا پیش ہو تو اسے ہم الف نہیں کہتے بلکہ اسے ہم حمزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ۔ تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا؟ جی جی۔ جی ابو بکر، آپ بتائیں حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ بڑے ہی اچھے انداز میں آپ نے جواب دیا۔ جی عبداللہ، آپ بتائیں کہ حرکات کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ حرکات کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، درست جواب دیا آپ نے۔ سبحان اللہ۔ اچھا عبد الباسط، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، تو کیا آپ بتائیں گے کہ یہاں پر حمزہ کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ۔ ماشاء اللہ، درست جواب دیا آپ نے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے حرف کی جانب۔ یہاں پر آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، لام پر ایک چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہے، اس چھوٹی سی دال کو ہم جزم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ جزم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب جس حرف کے اوپر جزم ہو اسے ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لام سے پہلے حمزہ لکھا ہوا ہے،
तो इस लाम को हम हमजा से मिलाकर पढ़ेंगे, यानी हमजा लाम जबर अल। समझ में आया बच्चों? जी मोहसिन, आप बताएं कि जो लाम पर छोटी सी दाल बनी हुई है इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम जज़म कहते हैं। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। जी ज़ैद रज़ा, आप बताएं कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? उसे पिछले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं। उसे पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। हमदान अली, आप बताएं कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लाम को किस तरह पढ़ेंगे? हमजा लाम जबर अल। माशाअल्लाह, बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने अदायगी की। तो बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की जानिब। हा पर, इस हा पर जो आप शक्ल बनी हुई देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा जबर। क्या कहते हैं? खड़ा जबर। खड़ा जबर। और इस हा के नीचे जो आप शक्ल बनी हुई देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा जेर। क्या कहते हैं? खड़ा जेर। और इस हा के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं उल्टा पेश। क्या कहते हैं? उल्टा पेश। खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश। प्यारे बच्चों, खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश को हम खड़ी हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी हरकत। खड़ी हरकत कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब जिस हर्फ पर खड़ी हरकत हो तो उसे हम एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो इसे हम पढ़ेंगे हा, खड़ा जबर हा, खड़ा जेर ही, हा, उल्टा पेश हु, हा, ही, हु। समझ में आया बच्चों? जी हमदान, आप बताएं कि जिस हर्फ पर खड़ी हरकत हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। जी अब्दुल्ला, आप बताएं कि यहाँ पर हम हा को किस तरह पढ़ेंगे? हा, खड़ा जबर हा। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। तो बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की जानिब। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जिस हर्फ पर जबर जेर या पेश हो तो उसे हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम काफ को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। जी ज़ैद रज़ा, आप बताएं कि इस काफ पर कौन सी हरकत है? पेश है। पेश है। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। अबू बकर, आप बताएं कि यहाँ पर हम पेश को किस तरह पढ़ेंगे? काफ पेश को। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। अब बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ताप पर एक 3 दांतों वाली शक्ल बनी हुई है। इस 3 दांतों वाली शक्ल को हम कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। प्यारे बच्चों, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे हम 2 मरतबा पढ़ते हैं। कितनी मरतबा पढ़ते हैं? 2 मरतबा। 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मीम ता पेश मुत, ता जबर ता, मुत ता। समझ में आया बच्चों? जी मोहसिन, आप बताएं कि 3 दांतों वाली शक्ल को क्या कहते हैं? तशदीद कहते हैं। तशदीद कहते हैं। अब्दुल बासित, आप बताएं कि जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? तशदीद वाले हुर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। एक मरतबा अपने पहले वाले हुर्फ से मिलाकर, दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। जी अब्दुल्ला, आप बताएं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप अदायगी कर कर बताएंगे कि इसे कैसे पढ़ेंगे? मीम ता पेश मुत, ता जबर ता, मुत्ता। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। तो बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ पर जबर लिखा हुआ है और काफ के बाद अलिफ है। प्यारे बच्चों, जब भी अलिफ से पहले जबर हो तो वहां पर अलिफ मद्दा होगा। क्या होगा? अलिफ मद्दा। इसी तरह वाव साकिन से पहले पेश हो तो वहां पर वाव मद्दा होगा। क्या होगा? वाव मद्दा। इसी तरह या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। क्या होगा? या मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चला कि हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या। तो अब्दुल्ला, आप बताएंगे कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा कब होगा? अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। जी अब्दुल बासित, आप बताएं कि यहाँ पर हम काफ को किस तरह पढ़ेंगे? काफ अलिफ जबर का। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले हर्फ की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सा। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, सा उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। जैसा कि एक है सा, दूसरा है सीन और तीसरा है स्वाद। सा, सीन और स्वाद।
जब हम सा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी, बल्कि इसे हम पढ़ेंगे सा। इसी तरह जब हम सीन की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज आएगी, यानी इसे हम पढ़ेंगे सीन। फर्क समझ में आ रहा है बच्चों? सा और सीन। फिर इसके बाद जब हम स्वाद की अदायगी करेंगे तो स्वाद में सीटी की आवाज भी आएगी और इसे हम मोटा कर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? सा सीन स्वाद। समझ में आया बच्चों? जी। माशाअल्लाह। तो अब यहाँ लिखा हुआ है सा, तो इसे हम पढ़ेंगे सुर। क्या पढ़ेंगे? सुर। अब मैं आपको मुकम्मल आयत पढ़कर बताऊंगा और आप मेरे साथ इसे मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? जी। तो मेरे साथ पढ़िए, अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर। अल्हाकुमुत तकासुर। जी हमदान। रा के ऊपर तो पेज लगा हुआ है, इसे हम साकिन क्यों पढ़ेंगे? रा के ऊपर पेश है और हमने इसे साकिन क्यों पढ़ा? प्यारे बच्चों, जो आप यहाँ गोल दायरे का निशान देख रहे हो, ये आयत की मुकम्मल होने का निशान है। जहां भी ये निशान होगा तो अगर इससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर, जेर या पेश हो तो उसे हम साकिन कर देंगे। यानी अगर किसी हर्फ पर पेश ही क्यों ना लगा हो, लेकिन जब ये निशान आ जाएगा तो हम उसे साकिन कर पढ़ेंगे, पेश नहीं पढ़ेंगे। समझ में आया बच्चों? लिहाजा यहाँ पर हम रू नहीं पढ़ेंगे बल्कि सा के साथ मिलाकर सुर पढ़ेंगे। समझ में आया? जी प्यारे बच्चों, आज हमने अपने सेगमेंट के अंदर तजवीद के हवाले से प्यारी प्यारी बातें सीखी। तो आइए इन बातों को एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने आज इस सेगमेंट के अंदर क्या क्या सीखा। ज़ैद रज़ा, आप बताएं कि हरकत किसे कहते हैं? जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जी हमदान अली, आप बताएं कि जिस हर्फ पर कोई हरकत हो तो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? जिस हर्फ पे हरकत हो उसे हम बगैर खींचे बगैर झटके दिए पढ़ेंगे। माशाअल्लाह। जी अबू बकर, आप बताएं कि जिस हर्फ पर जज़म हो हम उसे किस तरह पढ़ेंगे? अपने पहले वाले हर्फ से मिलाकर। अपने पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जी ज़ैद रज़ा, आप बताएं कि खड़ी हरकत किसे कहते हैं? खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। माशाअल्लाह, खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। जी अबू बकर, आप बताएं कि तशदीद किसे कहते हैं? 3 दांतों वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। जी ज़ैद रज़ा, आप बताएं कि हुरूफ मद्दा कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव, या। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। जी अब्दुल्ला, आप बताएं कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा कब होगा? अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने अपने इस सेगमेंट के अंदर सूरह तकासुर की पहली आयत को दुरुस्त तरह से पढ़ने की कोशिश की। तो आइए एक मरतबा फिर इस आयत को पढ़ लेते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी हमारे साथ इस आयत को पढ़ने में शरीक रहें। अब मैं पहले इस आयत को पढ़ूंगा और आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? जी। अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर। अल्हाकुमुत तकासुर। जी ज़ैद रज़ा, आप इस आयत को पढ़कर सुनाएं। अल्हाकुमुत तकासुर। माशाअल्लाह। जी अबू बकर, आप भी इस आयत को पढ़कर बताएं। अल्हाकुमुत तकासुर। माशाअल्लाह। जी अब्दुल बासित, आप भी इस आयत को पढ़कर बताएं। अल्हा